اب بڑھتے ہیں ایک بہت اہم موضوع کی طرف. کراچی کی سڑکوں پر ڈمپر اور ٹینکرز کا راج. اموات بانٹنے لگے ہیں. ڈمپر اور ٹینکرز سے شہریوں کی اموات میں اضافہ ہونے لگا ہے. ٹوٹی سڑکیں بھی حادثات میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. ٹریفک حادثات میں رواں برس 500 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ حادثات کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. روزانہ بے دردی سے بے رحم ٹرک ڈرائیورز، ٹینکرز، بڑے بڑے جو گاڑیاں ہیں ان کے ہاتھوں شہری مارے جا رہے ہیں. ان بے گناہ لوگوں کی اموات کا ذمہ دار کون ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سب پر ہم بات کریں گے. اور دیکھیں یہ ایک تو ٹینکرز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، صبح کے اوقات میں ٹینکرز ہمیں نظر آتے ہیں، دوپہر کے اوقات میں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ٹوٹی سڑکیں بھی اس کا باعث ہوتی ہیں اور کچھ ریش ڈرائیونگ بھی. علی راشد ترجمان حکومت سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ علی راشد، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے علی کہ یہ ڈمپرز کے اور ٹرالرز کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ہمیں واضح طور پہ نظر نہیں آتے کہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہوں ڈمپرز اور ٹرالرز کی طرف سے، کیونکہ سڑکیں بھی خراب ہیں، پھر سکول بھی کھل گئے ہیں. تو یہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ تحفظات کیا ہیں حکومت کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی، آپ نے مجھے بلایا ٹو اسپیک آن دس ایشو جو بہت سرگرم ہوا ہے آج کل. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ٹوٹی سڑکیں بھی اتنی ذمہ دار اس چیز کی نہیں ہے. آئی تھنک تھوڑی ریش ڈرائیونگ ہے ڈمپر کے ڈرائیورز کی طرف سے جو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہو سکتے ہیں. روڈ ٹوٹی بھی ہو یا ٹریفک زیادہ ہو، پھر بھی چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ڈرائیور اب جتنے بھی ماضی میں نیئر پاسٹ میں اگر ہم نے جتنے بھی ریسنٹلی ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں ڈمپرز کے، ان کے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں وہ غیر مقامی ہیں. وہ ہیں جو کے پی سے یا کہیں سے اپنی لائسنس، اب وی ڈونٹ ایون نو کہ وہ لائسنسز ان کے کتنے لیجٹ ہیں، اس لیے وہ پروونشل گورنمنٹ آف کے پی اور فاٹا اور ادھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں. سو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ غیر مقامی لوگ ہوتے ہیں، آدھے ایون ٹرینڈ انف، وہ لائسنس. علی ایک سیکنڈ، یہ تو بات ہے غیر مقامی ہے ڈرائیور کے پاس لائسنس. یہ دیکھیں ٹریفک پولیس کا اقدامات کر رہی ہے. جب ٹائمنگ کا سروت نے سوال کیا کہ رات کے اوقات میں یہ ڈمپر اور یہ بڑے بڑے جو ٹینکرز وغیرہ ان کی ٹائمنگ ہے، تو یہ دن کے اوقات میں کیوں نظر آتے ہیں ہمیں؟ یہ صبح کے اوقات میں جب بچے اسکول جا رہے ہیں، آفیسز جا رہے ہیں، لوگ وہاں بھی سڑکوں پر چل رہے ہیں، تو یہ تو ٹریفک پولیس کو روکنا ہے نا، یہ پابندی تو انہیں لگانا ہے. بالکل، میں اسی چیز پہ آ رہا تھا. دیکھیں the thing is کہ بالکل روکنا ہے. رات کی ٹائمنگز بنائی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں رات کو جتنے بھی یہ ٹینکرز ہوتے ہیں اور ڈمپرز ہوتے ہیں رات کو ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور there's so much that you can do. It's a big city. ہم روکتے ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں نا our failures are known, our successes are not. اگر سمجھے کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹینکرز اور یہ ڈمپرز آ رہے ہیں اور دن کے وقت جو بھی چل رہے ہیں اس میں سے 10 ہم نے روک بھی لیے، ان کو ہم نے چلان بھی کیا، وہ روکا بھی گیا، مگر کہیں نہ کہیں آئسولیٹڈ ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے جہاں وہ آیا تھا، تو وہ پھر میڈیا کی زینت بن جاتی. علی راشد، ہمارے ایک اور ہی گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، حاجی لیاقت بنگش، سندھ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. حاجی صاحب السلام علیکم، مچ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ اس وقت ہم علی راشد سے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈمپرز کے ٹائمنگز پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ساری رات ڈرائیورز وہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی وہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اور دن میں بہت سے وقت پہ حادثات ہوتے ہیں جو اسکول کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کون اس کے ذمہ دار ہے؟ اور آپ کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ آپ تو صدر ہیں نا، ظاہر ہے آپ تو رسپانسبل ہیں، تو کیوں ڈمپرز ہمیں نظر آتے ہیں ان اوقات میں جہاں پروہیبٹڈ ہے آپ کا آنا؟ وعلیکم السلام ظاہر بھائی. سب سے بات یہ ہے، میرا نام تو لیاقت بنگش نہیں ہے، میرا نام ہے لیاقت محسود. جی شکریہ. ابھی سنیا، میرا نام ہے لیاقت محسود. اچھا، اور دوسری بات آپ جو کر رہے ہیں، جو آپ کے ڈمپر کے اوپر پابندی کے آپ کیوں نہیں لگا رہے ہیں، تو آپ تو ڈمپر اور ٹرانسپورٹ کے صدر بھی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کسی بال بچے کا روزی ہوگا نا، تو اس کے اوپر کوئی لوگ پابندی بھی لگائے گا. یہ تو ہمارے ڈمپر ٹرانسپورٹر اور جتنا بھی ہے تو اس کا بال بچے کا روزی ہے،
हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, लोकल गाड़ी और तमीराती काम कर रहा है। तो हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, कराची गाड़ी कराची में चलेगा, हैदराबाद की गाड़ी हैदराबाद में चलेगा, यहाँ से लेकर कश्मीर तक ना। ये शहर के अंदर जितना मलबा भी है और कचरा भी है और रोड का सरकारी काम भी है, सरकारी बोल्टिंग भी है, सरकारी इदारे का काम भी है ना, सारा तो इसका काम भी कर रहा है। और दूसरी बात ये है, टाइम की पाबंदी में जो हमारे मलेर कैंट रोड है, उसमें शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक और सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उसी टाइम पे भी पाबंदी है। और शारा फैसल वाले रोड जो है ना, शारा फैसल वाले रोड पुराने जमाने से सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहाँ पाबंदी है। जो मेन सदर नहीं है और सदर जो मेन शहर है ना, जी जी, सदर मेन शहर जो है वहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक है। अच्छा हाजी साहब, बकाया मेरी बात जी। थोड़ी तो सुनो ना। जी जी, और बकाये हमारे जो रोड भी है, तो आपका क्या ख्याल है, जो शहर के अंदर कचरा तो सिर्फ 5 दिन के लिए बंद होगा तो शहर का हालात भी क्या होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाजी लियाकत महसूस साहब, आप एक तो हमारा मकसद बिल्कुल भी किसी की रोजी छीनना नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि डंपर की टक्कर से हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप कर रहे होंगे फॉलो टाइमिंग को, हम ये नहीं कह रहे कि आप टाइमिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो ड्राइवर्स हैं आपके, वो अक्सर रैश ड्राइविंग करते हैं और बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि टाइमिंग को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। अली राशिद साहब, आप ये बताइए कि आप भी ज़ाहिर अपनी टीम्स आपकी काम करती होंगी, क्या वाकई टाइमिंग को फॉलो करते हैं? क्या वाकई ड्राइवर सही तरह ड्राइव करते हैं? हादसात ना हुआ करते अगर इस तरह होता तो? अली, बहुत अहम सवाल ये भी है कि हाउ आर दे ट्रेन्ड एंड उनके क्या लाइसेंसेस सही हैं, वो सारी चीजें चेक एंड बैलेंस कौन देखता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं उस पर आता हूँ। देखिए इस चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। राइट, वो रोजी अपनी जगह बिल्कुल सबकी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह होनी भी चाहिए, बट अगर एक ड्राइवर को आप डबल शिफ्ट करा के विदाउट रेस्ट, कि वो समझिए कि अगर वो पेशावर से निकला है और वो बाय रोड आ रहा है, वो रुकता भी नहीं है, वो सोता भी नहीं है, वो जब तक कराची शहर पहुंचता है वो किस कैफियत में होता है, साइकोलॉजी, ये भी चीजें देखने की जरूरत है ना। व्हाई आर दीस इंसिडेंट्स हैपनिंग, कि क्या वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस ड्राइवर की? हो सकता है एक तो पहले लेजिट लाइसेंसेस हैं या नहीं है जो उनको मिले हुए हैं, सेकेंडली अगर हैं भी तो क्या वो डबल शिफ्ट करनी चाहिए उस ड्राइवर को बगैर सोए हुए, कि वो एक ही रूट में विदाउट स्टॉपिंग रोजी की खातिर, कि उसको शायद वो थोड़ा रोजगार ज्यादा मिल जाए अगर वो ओवर टाइम कर ले, मगर एट व्हाट कॉस्ट? यस बिल्कुल। तो ये चीज़ों को थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध अपने फ़राइज़ बिल्कुल अंजाम दे रही है। वी आर स्टॉपिंग, बहुत बड़ा शहर है कराची शहर में। अच्छा, आप जरा 2-3 चीज़ें बताएं, फिर लियाकत साहब से हम पूछेंगे। एक तो आपने कहा कि डबल शिफ्ट मसला है, और क्या मसला है? आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका जो डेटा क्या बताता है, वजूहात क्या है इन हादसात की? आप देखें, एक ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं, ये जो इनकी एसोसिएशन है, इनको थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। आई एम श्योर कि कोई डंपर वाला जिसको ही इज नॉट न्यू, उसको जिसको पता हो कि दिन में नहीं चलानी है, शायद वो दिन में नहीं चलाए, मगर अगर आप उसको एक टारगेट दे देंगे कि जी ये चीज़ है, ये फलानी जगह पहुंचनी है और इस टाइम तक पहुंच जानी है, वो फिर ना दिन देखेगा ना रात देखेगा। उसको इम्पोर्टेंस प्रायोरिटीज बताएं कि लोगों की जान जा सकती है, ये कानून है, चलान हो सकते हैं, आपका डंपर कॉन्फिस्केट हो सकता है, उसको पुलिस जो है वो लॉकअप कर सकती है आपको इस जुर्म में। तो वो इन चीज़ों में थोड़ी अवेयरनेस अगर उस साइड से क्रिएट हो, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम तो प्रिवेंट कर सकते। अली, चेक एंड बैलेंस के लिए हमें बेहतर चेक एंड बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए? हमें आई थिंक थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। वी शुड होल्ड दीज पीपल अकाउंटेबल। आई थिंक सिर्फ चलान, ये जैसे ये जो केसेस हुए हैं, जो भी डंपर, वही बात है, जिस कंपनी ने या जिस उसका एसोसिएशन या जो भी जो ट्रांसपोर्ट का वो ओनर है उस कंपनी के, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस ड्राइवर के खिलाफ सही सिर्फ नहीं होना चाहिए, उनको बताएं, पावर करें, उनको एक इबरत का निशान बनाएं कि भाई ये देखें तो बाकी लोगों में। हाजी लियाकत साहब, जैसे ये अली राशिद बात कर रहे हैं, डबल शिफ्ट में काम कराया जाता है, फिर डेडलाइन दी जाती है कि पहुंचना है, तो वो रात के औकात में भी डंपर चल रहा है, दिन के औकात में भी चल रहा है। फिर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, आप ड्राइवर से मुसलसल बात करते हैं, उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, इस पर भी कोई चीज़,
क्या है आपका सिस्टम, क्या है, किस तरह काम करते हैं आप लोग? नहीं, गुजारिश ये माशाल्लाह आज रशीद साहब ने जो बात किया उसने तो बहुत अच्छा बात भी किया। देखो आवाम मुझसे भी दूर नहीं है, हम तो आवाम के साथ है। मेरा अपने ऑफिस पे कम से कम 5 मोटरसाइकिल भी खड़ा है ना। आवाम का गम दर्द वो तो मेरा गम दर्द भी है। लेकिन जो हमारा डैम्पर है, डैम्पर के बारे में मैं बता रहा हूँ, हमारा डैम्पर तो सिंगल चलेगा, हमारा डैम्पर रात और दिन भी नहीं चलेगा। रात एक बात तो हमारा है, जब रात को 11 बजे के बाद शहर के अंदर जो सरकारी काम होगा या जो बिल्डिंग बनेगा या रोड भी बनेगा या वहाँ कचरा तो हम उठा सकते हैं, वहाँ शहरी लोग तो नींद कर रहे हैं ना। रात को बाद 11 बजे के बाद मैं वहाँ एक्सपीटर भी शुरू कर दूंगा और हीटर के साथ साथ हम डैम्पर भी शुरू कर दूंगा, जो मिट्टी बाहर भी फेंकेगा ना। रात को 11 बजे के बाद वहाँ शहरी लोग तो नींद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो शहरी लोग तो हमारा डैम्पर हमारा एक्सपीटर भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात ये एक्सीडेंट के बारे में सबको भी पता है, अभी 2024 में जब हिसाब हो गया हमारा डैम्पर का एक्सीडेंट था 10%। कितना? 10%। जो मोटरसाइकिल में आपस में एक्सीडेंट किया उसका एक्सीडेंट था 57%। ऐसे ही है। मैंने आपको बता दिया जो आवाम का गम दर्द वो तो मेरा गम दर्द है। ये मेरा दिल नहीं मानता है जो किसी का भाई और किसी का बेटा फोत होगा उसका गम दर्द भी होगा। लेकिन 2024 में जो हिसाब हो गया वहाँ तो हमने और आपकी तरफ से ताकीद की जाती है ड्राइवर्स को कि भाई आराम से चलाएं गाड़ी, क्योंकि ऐसे वक्त। जी जी। दूसरी बात ये, वो जो ड्राइवर की बात कर रहा है वो तो बिल्कुल मेरा हक भी बनता है, जो हम ड्राइवर भी समझाऊंगा जो शहर के अंदर गाड़ी आराम से भी चलाओ, इसमें जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी है। लेकिन जो हमारे खसूस डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, हमारे डैम्पर ट्रांसपोर्ट का एक्सीडेंट तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक डैम्पर ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ आवाम तो नजर में भी आ गया, वो तो हम इसके लिए डैम्पर कर रहे हैं। तो अभी 2024 में हमारा डैम्पर का एक्सीडेंट है 10%। मोटरसाइकिल ने जो आपस में किया, लेकिन एक्सीडेंट। अच्छा आज साहब हम डंपर्स की बात नहीं, हम कंटेनर्स की बात भी करें, टैंकर्स की बात भी करें, ट्रॉलर्स भी, बड़ी जो हैवी ट्रैफिक है उनकी हम बात कर रहे हैं, यानी डंपर्स का हमारा सारे ट्रांसपोर्ट है। हमारा 15 अलायंस का जो सेशन है ना, ये सब तो हम इकट्ठा है ना, ये सब की बात मैं करता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है, ज्यादा ना ज्यादा एक्सीडेंट आपको भी पता है तो शहर के अंदर जगह और जगह पे कटे, ये सबको भी पता है, आवाम को भी पता है और जितना मीडिया वाले भी है आपको भी पता है, जगह और जगह पे कटे और ज्यादा ना ज्यादा एक्सीडेंट तो ये कटे वजह से भी होगा। तो ये सीन गवर्नमेंट का हक भी बनता है जो उसका मरम्मत भी कर देगा, उसका इतना खर्चा भी नहीं हो, जितना ज्यादा एक्सीडेंट भी होगा और जगह पे कटे तो इस वजह से भी। अली राशिद, 500 लोग वफात पा गए हैं इन 2024 ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और अभी तक 23 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जस्ट शुरू के दिनों में 2025। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पे इम्प्लीमेंट किया जाए? जी अली, आपकी आवाज नहीं आ रही। इम्पोर्टेंट, और इस चीज का सिंध हुकूमत ने नोटिस भी लिया और ऐसी बात है इसका क्रेडिट मीडिया को भी जाता है कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया। और इस पर हमारी एक आला सतह पे मीटिंग भी हुई है, DIG ट्रैफिक कराची की जो हैं उनको भी बुलाया गया और एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि इन चीज़ों को अब जो हो रहा है वो हो रहा है, अब इट इज़ व्हाट इट इज़। अब वो रोडों की मरम्मत भी हो रही है, काम के साथ साथ मगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए और ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मेरे भाई हैं उन जैसे लोगों को इंगेज किया जाए और मिल के लेट्स बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि किसी तरह इस मसले को हल किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाजी लियाकत महसूस साहब, सदर डंपर एसोसिएशन। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कुछ कहना चाहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी भी शहरी की है। वो जो बाइकर्स की बात की ना, बाइकर्स भी इतनी रैश करते हैं, मतलब बहुत तेजी में चलाते हुए जा रहे होते हैं, खवातीन बैठी होती हैं पीछे, आप थोड़ा एहतियात करें, बच्चे बैठे होते हैं, अपनी जान की भी तहफ़्फ़ुज़ करें और दूसरे की जान से भी ना खेलें। अक्सर देखा है आपने, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, साइड से आप ओवरटेक करके और फिर तेजी में निकलते हैं, तो ये जरा हर किसी की जिम्मेदारी है ये। बाइकर्स को भी सोचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं रैश आप जब ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं। बिल्कुल जी।